پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ زندہ مسیح کے مبارک اور خوبصورت ترین نام میں آج آپ تمام مومنین کلیسا کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور عید قیامت المسیح کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ تمام جو ہمارے ساتھ کرائسٹ ویژن یورپ پر خداوند کے کلام کو سیکھ رہے ہیں اور فیس بک کے 6 مختلف پیجز پر اس وقت خداوند کے زندگی بخش کلام سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ماں بعد آپ جو واٹس ایپ اور یوٹیوب چینلز کے ذریعہ سے اس خدا کے کلام کے وسیلہ سے بابرکت ہو رہے ہیں، میری دعا ہے کہ خدا کرے کہ یہ خزانہ آپ تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ یہ ندیوں کی طرح آپ کے وسیلہ سے بہنا شروع ہو جائے، اور خدا کے ہاتھ میں آپ ایک چینل کی حیثیت سے ہوں، کیونکہ جو برکت میں اور آپ پا رہے ہیں لازم ہے کہ اس برکت کو دوسروں سے شیئر کریں، اور یہ وہ واحد خزانہ ہے کہ جس کو جتنا زیادہ بانٹیں گے اتنا زیادہ اور آئے گا، اور اس خزانے میں کبھی کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ بائبل مقدس کی آخری کتاب یعنی یوحنا عارف کی معرفت ملہم خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ کی ہم باہم مل کر سٹڈی کر رہے ہیں۔ ہم 17 باب کے اختتام تک بڑے آہستہ آہستہ محدود سے علم کے مطابق سٹڈی کرتے ہوئے پہنچے، اور اس 17 باب کو ہم نے باہم مل کر سٹڈی کے ذریعہ سے مکمل کیا ہے، اور اب ہم اس 18 باب کا آغاز کر رہے ہیں کہ اس باب سے بھی میں اور آپ باہم مل کر سیکھ سکیں۔ میں نے جب 17 باب کا آغاز کیا تھا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کو یاد ہو کہ یہ ذکر کیا تھا کہ 17 باب اور 18 باب ان دونوں ابواب کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ ان دونوں ابواب میں بابل کے زوال پذیر ہونے سے متعلق ہم دیکھتے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور اس بابل کی تباہی اور اس کے زوال پذیر ہونے کے حوالے سے 2 باتوں پر یا 2 پہلوؤں پر ہم نے غور کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک ایسا مذہبی نظام جس کو مخالف مسیح مصیبت کے دوران کے سیکنڈ ہیف میں استعمال کرے گا، اور دوسرا ایک ایسا پولیٹیکل نظام جس کو مخالف مسیح مصیبت کے زمانے کے اینڈ پر استعمال کرے گا تاکہ قومیں اور مملکتیں اور بادشاہتیں اس کے تسلط تلے آ جائیں، اور آخرکار اس بابل کا بھی مکمل طور پر زوال پذیر ہونا لازم ہے۔ ہم نے 17 کے اختتام پر دیکھا تھا کہ کیسے مخالف مسیح ان 10 بادشاہوں کو اور اس بڑی کسبی کو کس طرح سے اپنے اصل دانت دکھاتا ہے،
और उनके खून को वो पीता है। गोया वो 10 बादशाह जिनका उसके साथ अलहाक हुआ था, उनका भी काम तमाम, क्योंकि मुखालिफ मसीह अब बड़ा चौधरी बन बैठा और अपने आप को अनल हक कहता है। और दूसरी तरफ जितने भी उसके पुजारी थे, उन तमाम को, यानी उन बादशाहतों और उस मजहबी निजाम को जो झूठा मजहबी निजाम था जिसको यूज किया उसने, वो तमाम खत्म हो जाएगा। और अब जब हम 18 बाब में देखते हैं तो यह भी जिक्र करता चलूं कि बाबल जो मौजूदा इराक के कुछ एक खास साइड पर उस वक्त फिरात के दरिया पर पाया जाता था, अब जो जहां पर बाबल था वहां से दरियाओं को इस तौर पर रुख बदला गया कि तकरीबन 14 मील के फासले पर अब वो पुराना बाबल जहां था वहां पर निशानात पाए जाते हैं। और याद कीजिए कि फिर से उस शहर बाबल की तामीर की बाबत हम देखते हैं। और फिर उस बाबल का क्या होगा, इस बाब की स्टडी के दौरान हमें ये तमाम हकायक मिलेंगी। बेहतर होगा कि मैं इस 18 बाब की पहली आयत को आपकी खिदमत में तलावत कर दूं, अगरचे इस एक आयत का बकिया आयात से गहरा ताल्लुक है, लेकिन वक्त इतना होता नहीं कि चंद एक आयात का बाहम मिलकर मुतालिया किया जा सके। इसलिए एक ही आयत पर इस महदूद से वक्त में मैं आपके साथ मिलकर गौर करूंगा। किताब मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है, रूहुल कुद्स की तहरीक से बुजुर्ग यूहन्ना पतमस के जजीरे में यूं लिखते हैं कि इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान पर से उतरते देखा, जिसे बड़ा इख्तियार था और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। गौर फरमाया आपने? बुजुर्ग यूहन्ना कहते हैं कि इन बातों के बाद, कौन सी बातें? जो बातें 17 बाब में हो चुकी है। और मुकद्दस यूहन्ना को रूहुल कुद्स की तहरीक से जो मनाजर दिखाए गए, अब यह कहा जाता है कि उन बातों के हो लेने के बाद क्या होता है कि मैंने एक और फरिश्ता को आसमान पर से उतरते देखा, एक और फरिश्ता को। लेकिन इस फरिश्ता के बारे में डिटेल कुछ यूं है कि लिखा है कि इसके पास बड़ा अख्तियार था, अथॉरिटी एंड पावर। और फिर और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। यह फरिश्ता कौन है जिसके वसीला से जमीन रोशन हो गई, जलाल से मामूर हो गई? ऐसा फरिश्ता कौन सा है, क्या है? इन डिटेल्स में हम जाएंगे, लेकिन रफ्ता रफ्ता। लेकिन यह मैं जरूर कहता चलूं कि जो हम अगली आयात में जाएंगे, यह क्लियर होता चला जाएगा कि यह कौन है जो यूहन्ना पर जाहिर हुआ, आसमान से उतरा और
यूहन्ना उसके अख्तियार और उसके नूर और उसके जलाल की अपने अल्फाज में एक मंजर कशी करते हुए नजर आते हैं। 17 बाब में एक मजहबी बाबल की बाबत हम देख रहे थे, जो मुसीबत के जमाने के दूसरे हैफ में खत्म हो जाता है। और यह इशारा आलमों की निगाह में रोम की तरफ है। हम इस पर खूब बातचीत कर चुके हैं। मैं किसी क्रिश्चियन डिनोमिनेशन या किसी चर्च या किसी कलीसिया के बुजुर्ग को निशाना नहीं बना रहा। मैं इसकी बाबत कुछ नहीं कह रहा। मैं उलमा के जो ख्यालात हैं, उनकी जो तहकीक है, मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूं। और फिर 17 बाब में जो कसबी थी और वो जो 10 बादशाह और जिस हैवान का जिक्र हमें मिलता है, अब 18 बाब में उनका जिक्र हमें नहीं मिलता। और यह भी याद रखने की बात है कि इनकी तबाही हुई और इनकी तबाही के लिए मुख्तलिफ जराए इस्तेमाल हुए हैं, जो मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा और कला कमा होगा। 18 बाब में इनका जिक्र नहीं है। लेकिन जब हम इस 18 बाब का आगाज करते हैं तो इसमें जो तजारत के एतबार से, इक्तिसादी पहलू के एतबार से, इकोनॉमिकली जो बाबल है, उसकी तबाही की बात हो रही है। पहले मजहबी तौर पर जो बाबल था, जिसको तशबीह दी गई एक शहर से, रोम के, जिससे हमने बात की है, कदीम रोम के रोमा दारुल खलाफा की तरफ। और फिर इसके बाद, जैसा मैंने पहले कहा, उलमा की तहकीक के मुताबिक यह बाबल फिर से इस सरेनो तामीर होगा फिरात के किनारे, लेकिन उस मकाम पर नहीं जहां पर ऑलरेडी यह तामीर था। और यह बात क्लियर है कि जो मुसीबत का जमाना होगा उसके इख्तिताम पर ऐसा होगा। कुछ उलमा के मुताबिक यह बाबल इशारा है मशरिक़े वस्ता की तरफ भी, जिसमें यह अरेबियन पेनिसुला यानी अरब के इलाके आते हैं। उसकी कई एक वजूह भी है, क्योंकि इराक के करीब करीब वो भी हैं, पुराने बाबल के करीब करीब। और इक्तिसादी तौर पर वो बाबल रूहानी तौर पर भी बात हो रही है, इकोनॉमिकली खूब एस्टेब्लिश होगा। और उसकी भी जो वजह है उस पर हम बात करेंगे। मेन रीजन उसके इकोनॉमिकली एस्टेब्लिश होने की जो वजह है वो ये है कि अरब के बेशुमार इलाकों में से मादनियात, बिलखसूस जो आयल यानी तेल और पेट्रोलियम निकलती है, यह गोया पूरी दुनिया के लिए काफी है। अगरचे दूसरे ममालिक भी कुछ बरामद करते हैं और कुछ लोग दरामद करते हैं इस पेट्रोलियम को, और मशरिक़े वस्ता से वो खरीदते हैं
اور پھر اس کو کثیف کر کے استعمال کرتے ہیں فلٹرائز کرنے کے بعد. اور کچھ عرصہ پہلے، شاید چند سال پہلے اگر میں غلط نہیں، تو یہ کہا جاتا تھا کہ ہم امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، وہ ہمارا مخالف ہے، اور ہم اپنا آئل اس کو دینا بند کر دیں گے، اور اس کے راکٹس اور اس کے جہاز اور اس کے شپس کیسے اڑیں گے. اس طرح کی افواہیں حقیقت پر مبنی ہیں یا نہیں مجھے معلوم نہیں، کیونکہ میرا سیاست سے اتنا تعلق نہیں، لیکن سننے میں یہ آتا تھا کہ ہماری سب سے بڑی پروڈکشن ہے آئل، اور اگر ہم آئل بند کر دیں تو پھر یورپین لوگ اور امریکن اس آئل کے بنا کیسے رہیں گے. جبکہ سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ جس کو دھمکی دی جا رہی ہے اس کے پاس تقریباً شاید 60 سال کے لیے آئل کا ذخیرہ آلریڈی موجود ہے. یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو تحریری طور پر میرے پاس نہیں، لیکن جو لوگوں کی افواہیں تھیں، جھوٹی تھیں یا سچی ہیں، میں ان کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن یہ کہا جاتا تھا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ یکمشت خدا کی طرف سے ایک خاص فرشتہ آ کر، جیسے 17 باب میں اس مذہبی بابل کو آہستہ آہستہ ختم کیا گیا، 18 باب میں اس جو اکنامکلی، اقتصادی طور پر، مالی طور پر جو بابل کا تجارتی پہلو ہے، اس کو دھیرے دھیرے ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ یکمشت خدا کا فرشتہ آ کر اس بابل کو مکمل طور پر ملیا میٹ کر دے گا. ہم ان باتوں کا آنے والے دنوں میں باہم مل کر مطالعہ کریں گے. یوحنا نے جو فرشتہ دیکھا، اس کے پاس بہت بڑا اختیار تھا، اور نہ صرف اختیار کی بات ہو رہی ہے بلکہ اس کا جلال بھی تھا، نور سے بھرا ہوا. اور پھر اس کا جو کام ہے اور اس کی جو ذمہ داری ہے، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی. سبب یہ ہے کہ فرشتوں کی بابت ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کو خدمت گزار روح بنا کر تیار کیا ہوا ہے اپنے لوگوں کی مدد کے لیے، اور جو ہی ان کو حکم ہوتا ہے وہ بعین ویسے ہی ایکشن میں آتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو ذات الہی ان کو حکم کے طور پر کہتے ہیں. اور یاد رہے کہ یہ ایک ایسا ماجرا اور ایک ایسا عمل ہوگا جو ماضی رفتہ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا. یکمشت یہ اقتصادی طور پر، اکنامکلی، جو مالی طور پر بابل کو رشک ہوگا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، وہ یک مشت تہس نہس ہو جائے گا، زوال پذیر. یہ اس باب کا نچوڑ ہے جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. لیکن مقدس یوحنا ان تمام باتوں کے جو چشم دید گواہ ہیں،
मनाजर को वो देख रहे हैं, अलामती तौर पर और तशबीही तौर पर और तस्वीरी जबान में उनको रूह में जो भी मुस्तकबल के लिए हालात दिखाए जा रहे हैं, ये हालात ऐन यूहन्ना के वक्त में तो नहीं, लेकिन उसके बाद पूरे होते चले आ रहे हैं। और ये जो मुसीबत के जमाने वाले हालात हैं, ये कलीसिया के उठाए जाने के बाद जो इस धरती पर बिन मसीह के लोग होंगे, उन लोगों को इन हालात से हो कर गुजरना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि इस फरिश्ते से मुताल्लिक हम यह देखते हैं कि यह आसमान से उतरा है, बड़ा अख्तियार इसके पास है, और ऐसा अख्तियार कि धरती उसके नूर और उसके जलाल से मामूर हो गई है। यहां पर फरिश्ता का जिक्र है, लेकिन कुछ उलमा यह भी बयान करते हैं कि ऐसा नूरानी और ऐसा साहिब अख्तियार मासवा खुदावंद यीशु मसीह के कोई और नहीं है। मैंने कहा कई उलमा का यह ख्याल है, लेकिन याद रहे कि हम इस अहम तरीन नुक्ते पर मुस्तकबल करीब में जरूर बात करेंगे कि यह कौन है, क्योंकि कलाम अपनी तफसीर बजाते खुद करता है। लेकिन फिलहाल हम यीशु मसीह को फरिश्ता नहीं बना सकते, क्योंकि अगर यीशु मसीह खुदा का फरिश्ता है तो फिर यहोवा विटनेसेस अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है। खुदावंद यीशु मसीह फरिश्ता नहीं है, वो कलामे मुजस्सम है जो इस दुनिया में मेरे और आपके पापों के लिए फिदिया बनने के लिए आए, और उसके बाद इस अहम तरीन मिशन को पायाए तकमील तक पहुंचाने के बाद मरकर मुर्दों में से जी उठकर वो वापस वहां चले गए जहां से वो आए थे, और अब फिर आने वाले हैं ताकि मुझे और आपको जो मसीह यीशु में बा ईमान लोग हैं उनको अपने साथ आसमान पर ले जाएं, ताकि जहां वो है वहां हम भी हों। आज इस कलील और महदूद से वक्त में हमने 17 और 18 बाब के एक दूसरे से कनेक्शन से मुताल्लिक बात की। दो तरह के बाबल, एक मजहबी निजाम और एक सियासी जो इकोनॉमिकली बाबल है, इनकी बाबत बात की। इन दोनों की तबाही से मुताल्लिक भी बात की है, और 18 बाब का मुख्तसर सा हमने तारुफ भी किया, और फिर हमने इस पहली आयत को तलावत किया और देखा कि मुकद्दस यूहन्ना यहां पर क्या फरमाते हैं कि मुस्तकबिल करीब में इस बाबल का क्या होगा। और खुदावन ने अगर मौका दिया तो हम नेक्स्ट मंडे को फिर बाहम मिलकर इन अगली आयात पर बात करेंगे कि यह बाबल कैसा है और इससे क्या हुआ। और अगर इन आयात ने इस भेद को खोला तो हम इस मौजू पर भी बात करेंगे कि यह फरिश्ता कौन है जिसकी बाबत यहां पर हमें जिक्र मिलता है। और मेरी दुआ है कि खुदावन मुझे भी और आपको भी यह खास
फजल अनायत फरमाए कि हम खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम के मुताबिक हर वक्त अलर्ट रहें, क्योंकि मसीह की आमद सानी किसी भी वक्त हो सकती है। और अच्छा होगा कि हम बा ईमान होकर मसीह के साथ आसमान पर उठाए जाएं, पीछे ना रहें, क्योंकि हमें मुसीबत के जमाने से दो चार होना होगा। और अगर हमारे नाजरीन आप में से कोई ऐसा है या ऐसी है जो आज अपना आप खुदाबंद यीशु के स्पुर्द करना चाहते हैं कि कहीं पीछे ना रह जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल समा होगा, तो हम आपके लिए दुआ करना चाहेंगे ताकि आप मसीह में नई पैदाइश पाकर गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकें। और हां, हम आपके लिए भी जो मुख्तलिफ तरह की अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट्स लिख रहे हैं, आपके लिए भी दुआ करेंगे। मैं तो नहीं जानता कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक है जो हम सब के हालात को जानता है, और वो अपने शफीक हाथ को बढ़ाकर आपको इन तमाम प्रॉब्लम्स से अपने कुदरत वाले नाम से अपनी मर्जी से आजाद कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि अपना दिल मसीह को दें, तो मेरे साथ मिलकर आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं, लेकिन दिल खुदा के हुजूर पानी की तरह उंडेला हुआ हो। अपने गुनाहगार होने का इकरार करें, माजी के अपने पापों का खुदावंद के हुजूर इकरार करते हुए उनसे तौबा करें, और शुक्रगुजार हूं कि मसीह यीशु मेरे गुनाहों को धोने के लिए इस दुनिया में आए, मेरे इफ्जी और मेरे कुफारा हुए, कब्र और मौत पर फतह पाकर मेरी निजात का शादियाना बजाया है। दुआ कीजिए कि खुदाबंद यीशु आप पाकरू की सूरत में मेरे दिल में आ जाएं। मैं अपने दिल का दरवाजा आपके लिए खोलता हूं, और यकीनन खुदाबंद ऐसा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। रब्बुल अफ़वाज लश्करों के खुदा, आज शब में आपकी पाक हजूरी में बड़ी आजजी और इनकसारी से आते हुए शुक्रगुजारी करता हूं इस कलाम के लिए जो आपने हमसे किया है, और हमारे वो तमाम अजीज भाई और बहनें जो हमारे साथ ऑनलाइन हैं और अपना दिल, अपनी रूह, अपनी जान, अपना बदन, अपना जहन, अपने ख्याल और इरादे आपके सुपुर्द करते हैं। ऐ खुदाबंद, उनके जीवन में आ जाइए और गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का उन्हें यकीन दिलाइए। और मेरी दुआ है कि प्यारे आसमानी बाप, वो तमाम जो मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों में पड़े हैं, दुख में है, प्रॉब्लम्स और मुश्किलात में है, बीमारियों में है, और हालात के बड़े कठिन मोड़ से गुजर रहे हैं, मिन्नत करता हूं यस्सु के नाम से उनके उन तमाम शिकंजों को आप ढीला कीजिए। हर तरह के पीतल और लोहे के बैंडू को तोड़ दीजिए, बीमारों को शफा बख्शिए, और परेशान और दुखी हाल लोगों को आप अपनी तरफ से इत्मीनान, सुख और चैन अनायत फरमाए। आज शब इस खाकसार खादम की दुआ को अपने हुजूर कबूल फरमाइए, क्योंकि मांगता हूं अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और खुदावंद ने चाहा
تو ملیں گے نیکسٹ منڈے اسی ٹائم. تب تک کے لیے خدا حافظ.